What was the turning point that you suddenly, from having a normal life, started focusing on having a very healthy and a balanced life? मैंने कभी नहीं सोचा था कि I would take it this ahead, be on a podcast, talk about fitness and transformation. It all started with quitting alcohol. Then it was like, okay, चलो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रख देते हैं, थोड़ा खाने पे ध्यान देते हैं. You spoke about your conscious decision to quit alcohol. What was life like before and after this decision? Does being physically fit directly impact progressing in life? I want to know more about that aspect of your journey. Fitness is not just about physically fit. Right. You become mentally very strong. You learn to let go of lot of things. तुम्हारी एनर्जी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है. I want to know the darker side of your journey. So they would want to buy fancy clothes. फिर वो जिम जाएंगे. मैंने तो आप मानोगे नहीं, and lot of people don't even know 6-7 महीने तक जिम भी ज्वाइन नहीं किया. मुझे ये था कि मेरे एक दोस्त ने बोला था कि तू जिम ज्वाइन करने से पहले खुद की औकात तो देख. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इज लाइक, अरे जिम में जाके पैसे खर्च करेगा भाई, पहले तू जूते पहन के नीचे उतर के चल भी सकता है कि नहीं, जिसके लिए तेरे को पैसे भी खर्च नहीं करने. You given 60 seconds on the world's biggest stage. What would you say that would inspire millions of people out there? मेरा ये मानना है कि अगर मेरे को 60 सेकंड मिलेंगे ना स्टेज पे, मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलूंगा, आस्क फॉर हेल्प. Ladies and gentlemen, welcome to yet another episode of the Sunny Shah Show. Today, it is my privilege to introduce you to one of my friends. We've known each other for last 15 years, worked together in a corporate life. And his story, I believe, is an inspirational story for a lot of us, especially people who are in their 30s, 40s, early 50s. We are talking about taking care of oneself. We're talking about an important aspect of our lives. We're talking about our health. He is the founder and CEO of Shift Strong. Please welcome Sanyam Garg on the show. Sanyam, welcome to the show. Thank you so much, Sunny, for having me here. It's an honor. It's a privilege for me to be on your show. So thank you so much for this opportunity. The honor is all mine, man. I've been looking at your journey, especially we've known each other for last 15 years now. But the last 2 years, the way you transform your lifestyle, the way you transform yourself from who you are to who you are, has been nothing short of inspiration for me. So first of all, congratulations. It's not easy to be consistently disciplined in what you do. I think you set very high standards for all of us to follow. Thank you. Thank you so much. I would not say discipline. I would say wisdom. I now have the wisdom of why I'm doing what I'm doing. So that has made things easy. That's great. संयम, आपका स्टोरी बताइए. How did this hit you? The consciousness of making sure that health is more important than anything else. How did it hit you? What happened to you? What was the turning point that you suddenly, from having a normal life, started focusing on having a very healthy and a balanced life? So it all started with me since the time I became a father. And you know कि बच्चे हो जाते हैं, तुमको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और जब बच्चे छोटे होते हैं तब लगता है कि कितनी जिम्मेदारी है. बट ट्रस्ट मी, एंड यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट योरसेल्फ, इट ग्रोज एज एंड व्हेन द किड ग्रोज. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती है, और तुमको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है, चीजें ज्यादा करनी है, और स्पेशली एनर्जी बहुत कम है. एंड इट यूज्ड टू बॉदर मी. मुझे बहुत चुभता था कि मैं अपना पोटेंशियल अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता था मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जो बच्चे भी संभाल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं. दे आर येट बीइंग वेरी सक्सेसफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम. एंड आई जस्ट न्यू आई वाज नॉट दैट पर्सन. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद मी वांटिंग टू चेंज कि यार ये तो अपने बारे में बदलना ही पड़ेगा. आई जस्ट कैन नॉट लिव अ वेरी मीडियोकर लाइफ. आई हैव बिगर पोटेंशियल टू डू थिंग्स. तो वहां से शुरुआत हुआ, वो मुझे चुभने लगा. फिर मुझे लगा कि नहीं, बदलना तो अब है. बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वुड टेक इट दिस अहेड, कि आई वुड एवर एक्चुअली बी ऑन अ पॉडकास्ट, टॉक अबाउट फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. इट ऑल स्टार्टेड विद क्विटिंग अल्कोहल. देन इट वाज लाइक, ओके चलो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रख देते हैं, थोड़ा खाने पे ध्यान देते हैं. एंड आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे पीसेस ऑफ पजल्स वर मिसिंग. एंड I like to know कि यार चीजें काम कैसे करती है. That's how I actually got into this. So this has been my story. Fantastic. Is there an exact moment in your life when you realized, I can't live this way?
I need to change? Is there a trigger point? I'm sure as you share that, a lot of people in our audience would be able to relate to it, which is why I'm asking you this precise question. Actually, there were a lot of moments, but one that I particularly recall was इवान को 2.5-3 साल का होगा, आई थिंक उसका थर्ड बर्थडे से तो पहले की बात है, एंड आई टुक हिम डाउन टू इन अ सोसाइटी खेलने के लिए, एंड आई वॉज डेड टायर्ड, हिम्मत ही नहीं कुछ करने की, एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द बेंच, एंड ऑनेस्टली आई थॉट कि शायद मुझे ऊपर जाके सो जाना चाहिए, एंड ही वॉज कॉलिंग मी कि पापा आओ ना खेलो ना, एंड ही कॉल्स मी बाबा, सो इज लाइक बाबा आओ ना खेलो ना, एंड आई जस्ट डिडंट हैव द एनर्जी. उस टाइम पे मुझे बहुत चुभा कि यार आई एम नॉट गोना लिव लाइक दिस, दिस हैज टू चेंज. माय सन विल नॉट हैव एन एब्सेंट फादर, my son will not have a father who doesn't have time or energy to play with him. So उस टाइम पे लगा कि I am not gonna live like this anymore, and I will change no matter whatever it takes for me. You spoke about your conscious decision to quit alcohol. What was life like before and after this decision? Life was blurry. Weekends were especially blurry, and I used to think that drinking alcohol was very cool. सो जहां पे भी जाओ जो भी करना, और आजकल ऐसा होता है राइट, लाइक इंडिया में अल्कोहल ना पीना इज सो अनकूल दीज डेज. हर इंसान को पीना है, सोशलाइजेशन करना है, शादी में पीना है, जन्मदिन में पीना है, तो हर कोई ये कर रहा था. और मुझे ऐसा लगता था कि यू नो आई वॉज स्टिल अ गुड फादर, आई वॉज स्टिल अ गुड हस्बैंड, आई वॉज स्टिल अ गुड सन, बट कहीं ना कहीं ये तो मुझे पता था कि यू नो आई स्टिल वॉज ड्रैगिंग माई सेल्फ. लाइक आई वुड थिंक आई वॉज अ वर्कोहलिक, I was an alcoholic and I was a familyaholic, कि इन सब चीजों में टाइम तो देना था, लेकिन सेम काम करने में ना इतना एफर्ट लगता था, यहां से वहां जाना, ऐसा लगता था यू आर ड्रैगिंग योर सेल्फ, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर इरिटेटेड, योर सेल्फ एस्टीम वॉज लो, योर कॉन्फिडेंस वॉज लो, एंड आई वुड सी माई सेल्फ लाइक शॉपिंग के बाद शॉपिंग, कपड़े खरीदने के बाद कपड़े खरीदना, वेट ऊपर जा रहा है, एनर्जी नहीं है, हेल्थ इश्यूज होने लग गए, फैटी लिवर ग्रेड 2 होने लग गया, and I was just like done with that kind of a life. How old were you then? I was like what 34 35, and I had had good amount of life. I think college में जाने के बाद ही like sedentary life चालू हो गई. कॉलेज में तो फिर भी ठीक था, जॉब के बाद तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगता था कि schedule is a problem, night shift is a problem, responsibilities is a problem. और एक चीज मैंने और नोटिस करी कि लाइफ में टाइम कभी बढ़ा नहीं. 24 घंटे पहले भी थे, 24 घंटे आज भी हैं, और तुमको और ज्यादा करना है. लाइक यू नो फ्रॉम व्हाट मी स्टार्टेड जस्ट वर्किंग, देन स्टार्टेड डेटिंग दिस गर्ल, गॉट मैरिड टू दिस गर्ल, हैड अ किड, यू नो काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई, एक्सपेंसेस बढ़ते गए, एंड देन जस्ट एवरीथिंग वाज ड्रेनिंग. सो आफ्टर दैट आई हैव मोर एनर्जी. वीकडेज आर अ माइलस्टोन. मोर एनर्जी, बेटर एटीट्यूड, मोर क्लैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोर नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, कि अब लगता है दिन बड़ा है, अब फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, सेल्फ पिटी नहीं होता, कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई, यू नो यू लुक यंगर, यू नो यू लुक फिट, एंड यू हैव बिकम वेरी इंस्पायरिंग. लाइक अब तुम्हारे रिश्तेदार आके तुमसे बात करता है, तुम्हारे दोस्त आके तुमसे बात करता है, यू नो सीक्रेटली आई नो एवरीवन वांट्स टू हैव अ लाइफ दैट यू हैव राइट नाउ, बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू हैव बीन एबल टू डू. सो इट हैज बीन ट्रेमेंडस, एंड नेवर एवर वुड आई वुड हैव थॉट कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं. That has been the biggest gain for me. We'll come to your company in a moment, but I'm keen to know. So, after you decided to make this transformation, after you decided to change, after you started focusing on your personal fitness so that you could lead by example before you started helping others, I always hear you on social media talking about you want to do 200 things at a given time. Tell us more about what does that mean? Where is that adrenaline push coming in? Does being physically fit directly impact progressing in life? I want to know more about that aspect of your journey. मैंने ना कहीं पे एक्चुअली ऐसा सुना था कि जब तुम फिट हो जाते हो ना ज्यादा, सो यू स्टार्ट मेकिंग मोर मनी. इट नेवर मेड सेंस टू मी. आई एम लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल? आई नो इट नाउ. क्योंकि क्या होता है जब आप फिट हो जाते हो ना, पहली बात फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट physically fit. Right. You become mentally very strong. You learn to let go of lot of things. Ego तुम्हारा खत्म हो जाता है, because when you are in the gym, you see weights being much more heavier than you. तुम्हारी energy ज्यादा
मल्टीप्लाई हो जाती है, तुम्हारे अंदर जो पहले वो थॉट्स आ जाते थे, जैसे आई डोंट नो अबाउट लॉट ऑफ पीपल, बट मुझे ऐसा लगता था व्हाट इफ आई डाई, व्हाट इफ आई बिकम बेड रिडन। तो वो सारे जो तुम्हारे थॉट्स होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, यू बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉन्शियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंट इन लाइफ, and then you want to do things, you want to take risk, and because you have more time, you are not frustrated, you have this energy, you want to make an impact into the lives of other people, and it's not just about you anymore. You take care of relationship, you take care of people, you take care of work, you take care of small things, Right. and most importantly you start prioritizing what is important for you. Like मैं आपको बताऊं ना सनी, सबसे बड़ा एक मेरा significant change रहा है ना इन टर्म्स ऑफ हाउ मैंने खुद को जाना है। मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में आप मुझसे पूछोगे ना व्हाट इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी फॉर यू, आई विल टेल यू माय बिगेस्ट प्रायोरिटी इज मी। यस आई हैव माय वाइफ, यस आई हैव माय किड, बट अगर मैंने खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया ना, मैं उनका तो ध्यान ही नहीं दे सकता। बट इफ आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ, आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम, आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई किड, एंड आई कैन डू मच मोर थिंग्स फॉर देम। दैट इज हाउ इट हैज बीन दैट जर्नी फॉर मी, कि जहां पे मैं ज्यादा कर पा रहा हूं, ज्यादा इंपैक्ट कर पा रहा हूं, ना कि सिर्फ खुद की लाइफ में, लाइक सो मेनी अदर पीपल, यू नो, एंड आई थिंक आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट अदरवाइज। सो ये तो होता है। नाउ ऑफ कोर्स आई हैव सेव्ड मनी एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इवन मेकिंग मोर मनी, बट मोर देन द मनी इट हैज बीन अबाउट हाउ डू आई हेल्प अदर पीपल, Right. यू नो, चलते फिरते भी, क्योंकि ये एक स्किल है एंड other people are able to take advantage of it, and why not यार, लाइफ में खुद के लिए किया तो बहुत अच्छा किया, चार लोगों के लिए किया तो और अच्छा किया, and it creates a ripple effect, like वो चार लोग और चार लोगों की हेल्प करते हैं। Agreed. Change is never easy, especially when it comes to a hard change like being fit, giving away a lot of good food and dietary things that you are used to, working hard, working out, waking up early in the morning, those gym sessions. It's not easy. Everybody gets it. So we always see it's not linear, is what I'm trying to ask you. You will have days where you feel fit, you'll have weeks and months where you'll be absolutely 7 a.m. in the morning, you hit the gym. But then suddenly life happens to you and it's not consistent. Yeah, The lack of discipline and the other priorities of life often ensures that the health doesn't become a priority. To do what you've done over the last 2-3 years, and to maintain that consistency, that discipline, what kind of mindset is required? And what do you now guide people as you are now mentoring others for a successful, healthy lifestyle? that's a great question and thank you for asking this. I think क्या होता है कि one my funda has become कि don't chase perfection. I am a guy who look for progress over perfection. And early on to this journey ना, मुझे किसी ने एक बात बोल दी थी कि लाइफ होगी, यू कैन नॉट वेट कि जब मेरे पास टाइम होगा, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी, जब मेरे पास जिम्मेदारियां नहीं होगी, जब मेरे पास एक परफेक्ट इकोसिस्टम होगा, तब मैं जाऊंगा। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा खाना मतलब तुम्हारे पास शेफ होने चाहिए, Right. तुम्हारे पास वो इकोसिस्टम होना चाहिए, तुम्हारे पास उतना पैसा होना चाहिए। आई यूज्ड टू थिंक इट दैट वे, बट मैंने क्या रियलाइज किया कि यू हैव टू क्रिएट अ लाइफस्टाइल दैट फिट इनटू योर लाइफ, Mhm. बिकॉज यू आर गोना ट्रैवल, लाइफ होगी, डेथ होगी, शादियां होगी, अच्छी चीजें होगी, बुरी चीजें होगी, योर फिटनेस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तुम लाइफ में अलग से सब कुछ निकाल के नहीं कर सकते। सो माई गोल वॉज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, आई नेवर चेस्ट परफेक्शन। सेकेंड थिंग वॉज, यू नो, बोलते कि डिसिप्लिन या मोटिवेशन। आई थिंक मोटिवेशन इज गुड इनफ टू गेट यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन तुमको और थोड़ा आगे लेके जाता है। बट लाइफ में एक चीज है ना जो सबसे ज्यादा तुम्हारे काम आती है, वो है विजडम। जैसे डू यू स्मोक? No. व्हाई डोंट यू स्मोक? Wisdom. हाँ, Wisdom. विजडम, एग्जैक्टली। मैंने ये देखा है कि हर इंसान की लाइफ में ना, अगर वो कोई गलत काम भी कर रहा होता है ना, इवन इफ यू आर स्मोकिंग, उसको ये तो विजडम होता है। लाइक मैंने किसी सिगरेट पीने वाले को ये नहीं देखा, ओ माय गॉड सिगरेट इज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। उसके पास भी विजडम होता है, जो मैं कर रहा हूं ना वो गलत कर रहा हूं। सो आई थिंक माय बिगेस्ट थिंग वाज कि हाउ कैन आई हैव दैट विजडम कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए और जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपने लिए सही गलत पता होता है। सो जब आपके पास विजडम होता है ना, चॉइस करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब भी इन दोस मोमेंट, सी आई स्टिल ईट एवरीथिंग,
you know, but now whatever I do it with wisdom कि यार ये मेरे लिए कितना सही है, कल अच्छा खाया तो आज नहीं खाऊंगा तो चलेगा, आज आइसक्रीम खाने का मन है तो कोई नहीं, मैं उसको एक दो दिन में कॉम्पनसेट कर सकता हूँ, एंड अंडरस्टैंडिंग साइंस बिहाइंड इट, Right. यू नो, सो दैट हैज हेल्प्ड मी, लाइक आज मुझे क्या, हर किसी को पैसा खर्च करना पसंद होगा, बट कहीं ना कहीं पैसा कमाने जिसने बहुत पैसा कमाया है उससे ज्यादा ना, देर आर सो मेनी पीपल है ना जिन्होंने कम कमा के भी ज्यादा सेव कर लिया है। विजडम, आज खर्च नहीं करना, कल खर्च करना है, ये इसकी क्या जरूरत है, क्या वांट वर्सेस नीड, ऐसा करके मैनेज हुआ है। बट फॉर मी इट द मंत्रा इज नाउ विजडम, एंड सेकंड इज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। So you don't have a strict plan. You just make sure that we consistently follow. I believe if you are gonna show up 300 times inconsistently na, but you have showed up 300 times versus you have showed up only 30 times consistently, that matters more, Well said. you know, so वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। So there have been days I would have gone to gym for 20 minutes. There have been days I've done it for 2 hours. Mhm. There have been days when I have not eaten properly for 2 days. And there have been days when I've eaten clean properly for 1 week, 2 week in a row, and even months. So, लेकिन अगर आप डेली डेली वो चीज करते हो ना, it creates ripple effect and creates big changes for you in life. बट कोई परफेक्शन नहीं है, मतलब कोई फिक्स प्लान नहीं है सुबह उठ। सो आई एम नॉट अ गाय हु इज गोना वेक अप एट 5 in the morning, डू एन आइस बाथ, फिर जर्नलिंग, देन मेडिटेशन। आई कांट डू दैट। So I still work into night shifts. I still have improper schedules. I still have good days of good sleep. Still have जो कुछ ऐसा काम आ गया जो प्लान ही नहीं किया, घर में ऐसा कुछ हो गया, you manage around it. So what you're trying to tell me is, while you are fitness freak, while you are extremely conscious about your health, you also have a realistic lifestyle. Yeah. You're not forcing yourself to make a lot of sacrifice to make sure you continue to remain fit. Is that what you're trying to say? हाँ हाँ, मतलब एकदम नॉर्मल, जो घर में खाना बनता है हम वही खाना खाते हैं, जो बाहर हर इंसान की तरह हम भी हफ्ते में 1-2 बार बाहर जाते हैं, और वही जो नॉर्मल काम होता है, कुछ परफेक्शन नहीं है, वो क्रेजीनेस नहीं है कि दो जिम रैट बन जाओ कि घर गए, नहीं मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, इसमें तो आपने बहुत घी डाल दिया है, यू नो, कि नहीं पापा आज हम बाहर जा रहे हैं, और वाइफ, और लाइक माय ट्रेनर व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी डिड मेक दिस पॉइंट कि नेवर बिकम दैट पर्सन इन लाइफ कि आप अगर बाहर भी जा रहे हो ना तो बीवी बच्चों को आप डिसअपॉइंट कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा आपके साथ खाना, आप पिज्जा खा लो, मैं तो सैलेड खाऊंगा। सो ऐसा बिल्कुल भी फंडा नहीं, लाइक एवरीवन एल्स, दिस इज वेयर पीपल मेक मिस्टेक। लोगों के ना एक्सट्रीम होते हैं, Right. मैं करूंगा तो एकदम अच्छे से करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा तो एकदम जिम में किल कर दूंगा। लोग वो 20 मिनट्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो ना, तुम घर पे भी अपने बॉडी वेट से बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। सिंपल, तुम बहुत अच्छा नहीं खा रहे हो ना, तुम बेसिक प्रोटीन खा सकते हो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो तुम स्टेप्स कर सकते हो। हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, बट डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। मिलेगा तो एकदम किल कर दूंगा। नॉर्मल रहो, सब करो, छोटी छोटी चीजों को यूटिलाइज करो। जैसे मेरा एक फंडा है कि मैं मानता हूं हर इंसान है ना 1 मिनट में 100 स्टेप्स चल सकता है। अगर आप सोचो आपने दिन के 5 मिनट निकाल लिए, 1 घंटे में 5 मिनट निकाल लिए, 500 स्टेप हो गए। Right. आपने दिन में ऐसे 10 घंटे में 10 बार ऐसे 5-5 मिनट निकाल लिए, आपके 5000 स्टेप्स हो गए। Agreed. महीने के 1.5 लाख स्टेप हो गए। साल के कितने एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे आपको पता है? 18 लाख स्टेप्स। Wow. अबव एंड बियॉन्ड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, पावर ऑफ 1 मिनट। सो मैं क्या करता हूं, मैं उस क्रेजीनेस पे नहीं रहता हूं। कॉल पे होता हूं तो 2 मिनट चल लिया, ब्रश कर रहा हूं तो 2 मिनट चल लिया, किसी मीटिंग में हूं तो चलते चलते मीटिंग कर ली। एंड द अदर डे, लाइक परसों की बात है, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, एंड आई वाज डन विद 25,000 स्टेप्स। 25,000 steps. 25,000 स्टेप्स विदाउट मेकिंग एन एफर्ट। एंड आई वाज लुकिंग बैक कि आज मैंने ऐसा क्या किया। फिर मुझे ध्यान आया, इतनी मीटिंग्स थी मैंने चल के ली, इतने कॉल्स मैंने चल के लिए, यू नो। अगर मैं इंस्टाग्राम भी कभी स्क्रॉल कर रहा होता ना चलते चलते, अब एक हैबिट बन गई है। नाउ यू फील लाइक मूविंग अ होल लॉट। Sayam, let's talk about your startup, Shift Strong, the wonderful name. थैंक यू। You're having a thriving corporate career. What motivated you to start this? Give me more about, was this really a business push that you wanted to do? What was your thought process behind setting this up? I know you and your wife are partners in this. So tell me more about your story.
सो इट ऑल एक्चुअली स्टार्टेड विद अ व्हाट्सएप कम्युनिटी. मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग हैं ना जिनके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी, आई सी क्या होता है कि आप वेट लूज करने का सोचते हो, आप फिट होने का सोचते हो, फर्स्ट थिंग ऑफ दैट यू थिंक ऑफ इज गोइंग टू द जिम, हिटिंग द ट्रेडमिल, डूइंग दोज डंबल उठा के चालू पड़ जाते हो. एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. बट इस जर्नी में ना मुझे ये रियलाइज हुआ कि नॉलेज ही नहीं है. लाइक सो मच ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स सो कंफ्यूजिंग. कोई बोलता है प्रोटीन खाओ, कोई बोलता है प्रोटीन मत खाओ, कोई बोलता है ये गलत है, ये सही है, डिटॉक्स ड्रिंक्स लो, कीटो करो, ये करो, वो करो, और पता ही नहीं था कि क्या था. सो माय जेन्युइन इंटेंशन वाज ऑलवेज कि यार अगर मैं कर सकता हूँ ना, रियलाइज इट्स वेरी इजी. Right. मतलब इट्स जस्ट दैट लोगों को ना नॉलेज नहीं है. जैसे आज आप म्यूजिक सुनते हो, Yeah. आप पैशनेट हो म्यूजिक के बारे में, पर क्या म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो? No. ऐसा नहीं कि आप बनाना नहीं चाहते, क्रिएट नहीं करना चाहते, आपके पास नॉलेज ही नहीं है. सो माई होल थिंग वाज आई वांटेड टू क्रिएट अवेयरनेस कि यार क्या सही है क्या गलत है, एंड आई वांटेड टू क्रिएट नॉलेज. एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड विद जस्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी. एंड देन वी टुक इट टू इंस्टाग्राम, एंड देन वी डिसाइडेड इफ यू रियली वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, Right. अगर और ज्यादा लोगों को हेल्प करनी है ना तो उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, एक ऑफिशियल फोरम बनाना पड़ेगा. बट इट ऑल स्टार्टेड विद इंटेंट टू हेल्प अदर्स एंड मेक एन इम्पैक्ट ऑन टू द लाइव्स ऑफ पीपल. लाइक मुझे अच्छा लगता है यार कि अगर किसी की वाइफ मुझे बोलती है कि यार आपने हमारी फैमिली अच्छी कर दी बिकॉज यू मेड माई हस्बैंड हेल्थियर. You know, like I have kids coming to me and telling me कि you know my papa spends more time with me now, thank you uncle. So छोटी छोटी चीजें ना ये मेरे को बहुत अच्छा लगती है. लाइक कुछ कुछ जगहों पे मैंने ऐसा भी करा है मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ, यू नो, एंड इवन इन माय फैमिली दे आर 60 years old, 65 years old, उनका मेडिकेशंस कम हो गया है, उनका थायराइडिज्म, डायबिटीज बहुत कम हो गया है. सो इम्पैक्ट करना था, एंड दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड विद creating that awareness and then impact, and that is how Shiv Strong was born. Let's go a layer deep. Tell me exactly what you do. Let's say, for example, if I'm approaching you, I want to be your customer. How will you transform me and my fitness levels? So the first thing that we do is we are going to talk to you about the science. क्योंकि मैंने देखा कि आप साइंस को डिफाइन नहीं कर सकते हो. अभी एग्जांपल, मैंने एक एप्पल लिया, मैं एप्पल यहां से फेंकूंगा, वो नीचे जाएगा. कोई ये नहीं बोल सकता कि आपकी किस्मत थी वो नीचे चला गया, ऊपर भी तो जा सकता था, वो तो किसी ने देखा नहीं इसलिए वो नीचे चला गया. राइट? तो हम लोग क्या करते हैं कि वी एक्सप्लेन पीपल द साइंस बिहाइंड इट, एंड यूजिंग दैट साइंस वी क्रिएट दैट विजडम. Right. एंड जब आप में वो विजडम आ जाता है ना, आपके लिए चॉइस करना बहुत आसान हो जाता है. पर हमने देखा कि द प्रोग्राम दैट वी हैव इज कॉल्ड एज स्मार्ट बॉडी ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इट डज इज इट्स लाइक यू नो अपग्रेड फॉर योर फोन. लोग क्या करते हैं अपनी फोन्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉर योर एग्जांपल फॉर योर बॉडी, लोग नई एप्स की तरह न्यू एप्स की तरह लोग डाइटिंग प्लान, वर्कआउट प्लान, ये सब डाउनलोड करते रहते हैं. बट Right. इमेजिन योर करंट बॉडी ऑपरेटिंग सिस्टम, योर मेंटल क्लैरिटी, योर माइंडसेट, योर हेल्थ, योर हॉर्मोन्स, योर मेटाबॉलिज्म, अगर उसमें ही गड़बड़ हो तो आप कोई भी नई ऐप डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम आपकी बॉडी के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करता है. Okay. एंड ऑफ्टन लोगों को पता होता है मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ जाना है, उनके पास एक बोट भी होती है उस एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड पे जाने के लिए. पर जब भी वो निकलते हैं ना उस बोट में, तो या तो रास्ता भटक जाता है तो वापस आ जाता है, या बोट डूबने वाली होती है तो वापस आ जाता है. तो हम क्या करते हैं, वी फिक्स द जीपीएस ऑफ योर बोट, वी लुक एट कहाँ पे छेद है, वी लुक एट द इंजन ऑफ योर बोट, एंड वी फिक्स ऑल ऑफ दिस, एंड यूजिंग द सेम बोट जर्नी आप ही तय करते हो. You help Like- navigate. We help you navigate, we help you to fix what is broken, but most importantly हम आपको बताते हैं कि क्या broken है. जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आज आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप तो ठीक करने नहीं बैठोगे, आप जैसे एक्सपर्ट के पास जाओगे अब ठीक कर लोगे और आप अपनी गाड़ी सही चलेगी. तो हम लोग वो एक्सपर्ट्स हैं. वी हेल्प यू टू फिक्स योर कार्स, यू नो, सो दैट यू डोंट डू इट योरसेल्फ. एंड लाइफ में ऑल यू नीड, समटाइम्स मैंने आपके एक वीडियो में भी देखा था, यू नीड अ सिस्टम, यू नीड स्ट्रक्चर. वी हेल्प यू गिव दैट सिस्टम. Nice. I like your jargon when you say body operating system. That's good. Something thought provoking. But Sayam, there are thousands of fitness app out there. There's thousands of people who provide things around healthcare and fitness. What truly differentiates Shiv Strong? The truth, the fact, and the science.
I think we are not here to create confusion. We are not even here to make money. Like we are just here to create awareness कि क्या सही है क्या गलत है. Like something as simple as that कि the way you start your day, आप जो breakfast करते हो आपको पता नहीं होगा उससे से आपके energy crashes होते हैं. So what we do is we explain science to people and we help people to make better choices in that. That is why we are different, because we are not going to talk to you about कि, and most importantly हाँ, हम आपकी current life को आपकी स्टाइल में आपकी लाइफ में फिट करते हैं. Right. So we will never tell you sleep at 9, wake up at 4, योगा करो, यहाँ जाओ. आपका जो लाइफस्टाइल है, आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो टाइम पे सो रहे हो, हम उसी के अंदर आपको फिटनेस फिट करके देते हैं, हेल्थ फिट करके देते हैं, so that आपके लिए ओवरवेलमिंग ना हो. You know, and we always tell you, and we'll be very realistic with you. Like आप मेरे को बोलोगे मुझे 1 महीने में 6 किलो वेट लूज करना है, मैं मना कर दूंगा कि यार पॉसिबल है, सस्टेनेबल नहीं है. So we are very true people and we will tell you what is realistic and we will set your expectations to begin with. This is how we are different. And I would not say कि यार हम ही ऐसे हैं, इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं, मतलब बहुत और भी लोग हैं ऐसे, लेकिन हमको अवेयरनेस नहीं कि वो लोग कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं. Right? So if I am that your neighborhood dietitian or nutritionist who can help you to break a lot of myths, you know, in a very easy and simple ways. With that friendly neighborhood Spider-Man Yes. who takes care of our health. Exactly. Nicely put. Good, good. So I have a question here. You've been, and I keep worrying when you say that, right? And I've been telling this on different forums. I've heard you that knowledge gap is more dangerous when it comes to fitness. Where does that realization comes from, Sanyam? What do you mean by it? यार मैंने जब ये जर्नी चालू करी ना, तो अगर आज मुझे 2 साल के आसपास हुए हैं, आई थिंक 1 साल तो मैंने मेरा वेस्ट ही कर दिया था. कुछ भी कर रहा हूँ, Okay. जिम जा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, कुछ खाया नहीं खाया, भूखा रह रहा हूँ. लाइक एक बार तो क्या हुआ, मैंने सुना इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होती है. 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, 3 दिन तक तो मुझे ऐसा लगा, तीसरे दिन तो कि मैं हैंगओवर में उठाऊं. Oh my God. एंड आई हैड अ टी, और मुझे पता नहीं था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली तो मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ भी खा सकता हूँ. सो उसके जस्ट बाद मैंने ब्रेड बटर खा लिया. इट वाज माय फेवरेट एंड आई कुड नॉट इवन वेट कि मैं वॉशरूम तक जा सकूं. आई एंडेड अप प्यूकिंग इन द हॉल ओनली, इन द लिविंग रूम ऑफ माई होम, कि वहीं पर उल्टी कर दी. इट वॉज सो बैड फॉर मी. तो मैंने ये नोटिस किया कि लोग ना अच्छा खाना चाहते हैं. लाइक दुनिया में ना 4 चीजें मेरे पापा बोलते थे हर किसी को चाहिए: अच्छा इमेज, अच्छा परिवार, ज्यादा पैसा और अच्छी हेल्थ. और हर कोई ये करना चाहता है, लेकिन है ना प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे कैसे करना है. लाइक हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लोगों को लेकिन पता ही नहीं है बनना कैसे. So when you say I don't have the money, problem is not like because I don't have money to make money. Problem is you don't have the knowledge of how to make money. Right. When you want to save money, it's not like you cannot save money. तुमको knowledge ही नहीं है कि यार how can I save money. तुम्हारे पास wisdom ही नहीं है यार कि मेरा पैसा नहीं बचा है तो मेरा बुढ़ापा कैसा हो सकता है. So that is what it is where I feel that intention is never a problem. Knowledge is the problem, क्योंकि intention हर किसी का अच्छा होता है. कोई इंसान नहीं बोलेगा यार कि मेरी मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं देना चाहता, पर उसको पता ही नहीं कि कैसे करना है. दिस इज वेयर वी कम इनटू पिक्चर एंड आई से यार कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है. This journey of Shift Strong has not just been a personal journey. I believe your wife, your son, and everybody in your family have been involved in this. What does this mean to you? Tell us more about that personal angle. So my wife is a co-founder in my life and in this company. So, and she has been a very big inspiration to me. See, pehle when I used to drink a lot, she never fought with me. And I think that actually helped me to quit alcohol. Because लड़ाई झगड़े होते तो और ज्यादा मैं करता, उसने हमेशा समझाया. Second one was when I was trying to chase perfection. She said that your transformation doesn't have to be about 6-pack abs. It has to be about alignment. Alignment कि हम परिवार को लेके कैसे साथ में चले. इवान को तो आज भी लगता है कि पुशअप इज अ गेम. अब ऐसा हो गया है कि लाइफ में वर्कआउट इतना नॉर्मलाइज हो गया है ना कि इवान को लगता है कि हर पेरेंट्स जिम जाते हैं, हर इंसान प्रोटीन खाता है, हर इंसान फाइबर खाता है, और अगर तुम नहीं ये करते हो ना तो उसको बस शॉकिंग लगता है. सो व्हेन ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड एंड ही डिस्कवर्स कि यार तुम्हारे पेरेंट्स जिम नहीं जाते हैं, वो उनको बोल देगा कि तुम्हारे पेरेंट्स जिम नहीं जाते, बिकॉज उसको लगता है हर इंसान जैसे हर बच्चा स्कूल जाता है ना,
हर इंसान जॉब पे जाता है, उसको लगता है हर इंसान जिम में जाता है. सो दैट इज हाउ इट हैज बीन नॉर्मलाइज्ड, एंड दे हैव प्लेड अ बिग रोल इन हेल्पिंग मी, सपोर्टिंग मी. एंड इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया कि पूजा बोलती है यार कि आज मैं जिम जाऊंगी, हाँ प्लीज, क्योंकि हम दो ही लोग हैं. वी डोंट हैव अ नैनी फॉर इवान, वी जस्ट डू एवरीथिंग बाय सेल्फ. फुल टाइम जॉब भी है, फिर फैमिली को भी देखना है, इवान को भी ग्रो करना है, उसके स्कूल के भी काम है, होमवर्क भी कराना है, कभी कभी मेड्स भी नहीं आती है. तो कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि दोनों में से एक ही जिम जा सकता है, तो पूजा बोलती है कि नहीं आज तो जिम मैं जाऊंगी, तुम घर पे बैठो. Right. So that is the impact that has happened, and now our discussions are no more about gossips, no more about ये टीवी पे क्या चल रहा है. It's about next क्या करना है, कंपनी को कैसे ग्रो करना है, तुम्हारा पीआर क्या था. Like हमारे WhatsApp conversations change हो गए हैं. Like if I can show you ना, like yesterday she sent me a video कि देखो आज मैंने मेरा पीआर हिट कर दिया. And in that moment, you know, you feel so good यार कि how much you have changed. What's a PR? It's your personal record. Personal record. Okay. Personal record कि कल उसने squats किए with 25 kgs. Never did. You know, it started with body weight 5 किलो, 2.5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो मार दिया कल उसने. And she took a video and sent me. Like I felt so happy यार, because we both are progressing in life now. Yep. And we both are thinking और आगे क्या करना है, इसको कैसे grow करना है. Both of you are working parents. You work in nights. You also have a son. And you also have a baby called Shift Strong now. So life can get cluttered, because I run multiple businesses. I can tell you from my own experience, right? You got to be very focused on what you're doing. Otherwise, you can be all over the place. Yeah. What's your daily ritual that keeps you grounded? So gratitude. Okay. Because मुझे ऐसा लगता है लाइफ में अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, still be thankful to God कि you know आपने मुझे सिचुएशन दिया, because it will not make sense to you that time, it will make sense to you later on. और अगर कुछ अच्छा चल रहा है ना, then also gratitude, because lot of people, lot of things just came together to make it work for you. So gratitude जो है thank you, gratitude जो नहीं है वो भी thank you. Right. That has always kept me very grounded, and I know it's not me, it is well-wishers, my family, my friends, you know, even my colleagues. Like choti cheezein, like I feel that the ecosystem I have at my work, the ecosystem I have at my family helps me to do a lot of things, and gratitude is at the center of everything. And for me, I don't know matlab bhagwan hai nahi, but for me gratitude is God, and Very God good. is gratitude. Let's get a little brutal, shall I? Yes. People see your success. People see the transformation that you had. People look at you as somebody who has a great career in corporate life, a beautiful stint which Shift Strong now, and transforming so many other lives through this journey, which has been your mission for the last few years. What people don't see is the darker side of challenges, of fighting with your own self for not quitting while all this happened. Do you mind sharing the darker side of this journey so people can take inspiration from it? It's not about a rosy picture of being successful overnight, right? You would know, your family would know the grind that you would have gone through. Yeah. And mostly it's a battle that we fight within us. It's more of self-reassessment. Are we in the right trajectory? Shall we do this? Shall we not do this? I want to know the darker side of your journey. यार आई थिंक सबसे जो टफ था ना मेरे लिए वो था टाइम निकालना, बिकॉज आई वॉज इन नाइट शिफ्ट. तो होता क्या था, आई वुड गेट डन बाय 3 or 4 in the morning, एंड देन सुबह 7:30 बजे इवान को उठाना होता था उसके स्कूल के लिए, और अगेन वापस सोना है तो टाइम कैसे निकाल लूँ. तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया. सो द टफेस्ट टाइम वॉज व्हेन आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अ ट्रेनर at 4 in the morning, and finally I got a trainer. So I would train from 4 to 5 in the morning, and I would sleep by 5:30 or even 6. I will wake up at 7:30, do Wow. this thing with my kid to get him ready, because I never wanted to be a father who was sleeping while his kid was getting ready for the school. Like मैंने हमेशा अपने आप को पिक्चर किया था जो उसको नहला रहा है, ब्रेकफास्ट करा रहा है, बस तक छोड़कर आ रहा है, स्कूल तक छोड़कर आ रहा है. तो वो बहुत टफ था. सो यू नो, स्लीपिंग फॉर 1.5 hour, फिर इट स्टार्टेड टेकिंग टोल ऑन यू. इट वाज नॉट रियलिस्टिक, राइट. फिर मैंने शाम को, दोपहर को किया, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ. मैंने शाम को किया, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ. सो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड देन इट इवेंचुअली pushes you to ask yourself question, यार मैं क्यों कर रहा हूँ. Right. Because
बाकी सब ये सब नहीं करने की ट्राई कर रहे हैं। एंड स्पेशली तुम्हारा सर्कल ही ऐसा होता है ना, पीपल इन द ऑफिस, पीपल इन योर फ्रेंड सर्कल, एवरीवनस लाइक एंजॉय लाइफ, चिल मारो, खाओ पियो, मजे करो, क्या जरूरत है। तो वो मेंटली बहुत टफ हो जाता है यार तुम्हारे लिए वो टाइम निकालना, एंड द वाई ऑफ इट डूइंग। तो एक जिद चाहिए होती है कि नहीं यार मुझे करना है। एंड मैं मानता हूं ना कि ह्यूमन रेस इतना स्मार्ट है ना कि अगर उसने प्रायोरिटी कर ली, लाइक इफ दे आर एबल टू प्रायोरिटाइज, वो टाइम निकाल लेते हैं। तो मेकिंग दिस माई प्रायोरिटी, फिटिंग दिस इन माई डेली स्केड्यूल, चाहे कितना भी थका हुआ हूं, टू भले 20 मिनट करूंगा, भले ही 10 मिनट करूंगा। जैसे आज मैं लोगों को देखता हूँ, उनको होता है ना मुझे जिम जाना है, so they would want to buy fancy clothes, fancy water bottle, that shoes, फिर वो जिम जाएंगे। मैंने तो आप मानोगे नहीं, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो, 6-7 महीने तक जिम भी ज्वाइन नहीं किया था। मुझे ये था कि मेरे एक दोस्त ने बोला था कि तू जिम ज्वाइन करने से पहले खुद की औकात तो देख। आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इज लाइक अरे जिम में जाके पैसे खर्च करेगा भाई, पहले तू जूते पहन के नीचे उतर के चल भी सकता है कि नहीं, जिसके लिए तेरे को पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। तू 20 दिन तक वो तो करके दिखा, फिर जिम में पैसा खर्च करना। एंड दैट स्टेटमेंट चेंज्ड माय लाइफ, बिकॉज आई वाज लाइक वो सही बोल रहा है। क्या मैं वो जूते पहन के नीचे जा सकता हूँ कि नहीं 20 डेज इन अ रो? सो वैसे करके चालू किया, बट बहुत बार हुआ कि यू नो बहुत टफ है, ओवरवेलमिंग है। बट दैट वाज माय डार्कर साइड, टाइम निकालना, ओवरवेलमिंगनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, कैसे मैनेज A करूं। lot of time you would be thinking of quitting as well, right? बहुत बार सोचा How did you? यार, सोचा तो ये कि क्विट कर देता हूँ। क्विट करके क्या, लाइक गो बैक टू द लाइफ दैट आई वाज हैविंग बिफोर, जिससे मैं बाहर निकला हूँ। Quitting was not an option. क्विटिंग वाज नॉट एन ऑप्शन। और क्विट करके क्या कर लेता, इधर यू गो बैक टू द लाइफ और व्हाट, लाइक नेटफ्लिक्स। Yeah. मतलब इतना पोटेंशियल है ह्यूमन लाइफ के अंदर, और मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना पोटेंशियल जस्ट बाय थिंकिंग दैट ओ माय गॉड माय लाइफ इज सो टफ बिकॉज आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड, एंड आई डू अ फुल टाइम वर्क। लाइक सनी, यू वर्क इनटू अ कॉर्पोरेट, you are a father yourself, you are running so many successful businesses, फिर भी खुश हो, फिर भी चेहरे पे स्माइल है, फिर भी बढ़िया सोते हो, राइट? तो ये है यार कि क्विटिंग वाज नेवर एन ऑप्शन, कि करना है तो करना है, एंड देन तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में यार। Yeah. एक जिंदगी मिली है, कहाँ वही 9 to 5 के अंदर बिता के you can do it. And I'm not saying that 9 to 5 is not important. It is very important for me. Like I want to be able to make that money, and I want to be able to contribute in the work that I'm doing. But मैं उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, made to do bigger things in life. Very nice. Let's do a role play. You're given 30 seconds. Let's make it 60 seconds. You're given 60 seconds on the world's biggest stage. What would you say that would inspire millions of people out there? यार, this is my favorite, and thank you for asking this and giving this platform, क्योंकि ये genuine है। मेरा ये मानना है कि अगर मेरे को 60 सेकंड मिलेंगे ना स्टेज पे, मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलूंगा आस्क फॉर हेल्प। लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं ना, दे थिंक दैट दे कैन फिगर इट आउट बाय देमसेल्व्स। लाइक जिम नहीं आता, वर्कआउट नहीं पता, खाने का नहीं पता, पढ़ाई में कुछ नहीं पता, जॉब में कुछ नहीं पता ना, या तो लोगों का ईगो बीच में आता है, या लोग एप्रीहेंसिव होते हैं यार कि वो मेरी मदद भी करेगा कि नहीं करेगा, या पता नहीं लोगों के मन में क्या थॉट आता है, लाइक मे बी दे फील जेलस और एनवियस, तो लोग मदद नहीं मांगते। Right. One thing that changed for me na was asking for help. Like when I wanted to quit alcohol, I reached out to this guy who was my co-worker in America. And I told him that, hey, his name is Mike Anderson. And I said, Mike, I need your help. And he was very kind enough. The 6'5" or 6 feet 6 inch guy was very loud all the time. I thought he was very arrogant. He was so down to earth, Sunny. मतलब उसने 1-2 महीना genuinely, he spoke to me every single day from his own time to help me. Then I reached out to one guy कि यार मुझे एक ट्रेनर चाहिए, who can help me. He helped me. फिर मुझे खाने के लिए हेल्प चाहिए थी ऑफिस के अंदर। मैं जिम में ना लोगों को रोज देखता हूँ कि तुम्हारे पास ट्रेनर नहीं हायर कर सकते हो, ठीक है, वो किसी से पूछते भी नहीं यार कि मुझे एक्सरसाइज कैसे करनी है। लाइक लोगों के अंदर, मेरे घर के अंदर, लाइक देयर इज हेल्प अवेलेबल। आई एम नॉट सेइंग रीच आउट टू मी, बट इफ यू हैव हेल्प अवेलेबल ना, मेरे खुद के दोस्त मेरे से नहीं पूछते कि भाई क्या करूं, लाइक खाने में क्या सही कर सकता हूं, मेरी फैमिली नहीं पूछती है। सो इफ यू वांट टू डू बिगेस्ट थिंग्स, अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जो तुमको नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे आजू बाजू वो लोग हैं ना जिन्होंने फिगर आउट कर लिया है, आस्क फॉर हेल्प।
That's it. It will be the biggest value addition you can do in your life and others can do in your life. And you know what? It doesn't cost money. Zip zero. That's awesome. Sayam, I truly believe we come from the same generation, few years apart. I take great inspiration from you because I've seen your past and your current, and God willing, future is going to be even more brighter. And I'm talking about your fitness. You are somebody who is preaching what you've done yourself. And I'm sure that's very important to lead by example in your business. The biggest joy that I get seeing Shift Strong grow is in this mission, you're going to transform thousands and thousands of lives, not just in India, but people across the globe. And I wish you nothing short of tremendous success in this journey. For our audience's sake, if they need help, we'll put your details in the description of this video so they can reach out to you directly. And I wish and pray to God that this journey of making everybody healthier and fitter continues to be an evergreen journey, and there is no looking back for Shift Strong. So with that being said, we come to the end of this episode, and it was nothing short of excellent happiness and sheer joy talking to you today, man. And Sunny, thank you so much for giving me this platform and the opportunity, because I want to tell people, you know, a lot of things that actually you covered through this episode, through this podcast. And I hope more and more people get fitter, more and more people get healthier, because it's very easy. आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे गिव अप कर देते हैं. तो आई होप अगर इससे 5 लोगों की भी हेल्प हो जाए और उन 5 के थ्रू 2 की भी हेल्प हो जाए, उस 2 के थ्रू 1 की भी हेल्प हो जाए, I think you and I would have done justice to this episode. So thank you for getting me here. Thank you so much. Thanks Thank a you. lot. So, ladies and gentlemen, that was Sayam Garg. Fitness can either be an excuse or a priority. Choice is yours. Please stay tuned for more such conversations. Don't forget to subscribe to our channel as we surpass 100,000. It means a lot to all of us. Thank you so much. Take care. Thanks.